हाय फ्रेंड्स। दोस्तों, डॉक्टर उमेश खन्ना की तरफ से आप सभी को मुंबई किडनी फाउंडेशन का ढेर सारा प्यार और अभिनंदन। Kidney Warriors Group, I'm happy to be part of you and always happy to support the activities of Kidney Warriors Group. And I'm really enamored of the fact that you've been so helpful to the entire kidney community. I think I think probably Vasundhara decided on this topic because it was so important to all the patients. And when I asked her why me, so she said you are most suitable to take this talk, mainly because she thought in my biodata I don't have any academic qualifications, but I'm chairman of Mumbai Kidney Foundation, trustee of Sapiens Health Foundation, secretary of Amar Gandhi. So it's all NGO based activities, although I do practice also. Maybe the other reason she probably opted for me was because I have experience of setting up dialysis units, both nephrology owned, corporate one. For example, I started Leelavati Dialysis Center with my both hands. And then, of course, famous for starting various NGO-based dialysis units. In fact, in my entire career of about 35 years, I've started more than 25 dialysis centers. So maybe she thought that I have the experience to start the dialysis centers and therefore to give this talk. So one of the most important reasons why patients cannot take ideal treatment, according to me, is basically cost. And easily this topic is very important. And the other reason is many times there is a mistrust between dialysis center and the patient. Patient को लगता है कि इतना dialysis का cost क्यों होता है. So therefore again this talk becomes important. At the same time why I feel so important कि इस topic को cover करना चाहिए because I have patients who are on dialysis for 20 years, 25 years, 15 years. So उन लोगों के problems, उन लोगों की तकलीफें, उन लोगों का खर्चा उससे हम वाकिफ हैं. That means we are able to empathize with the problems which they are facing. So, but at the same time, क्योंकि I have been in the forefront of setting up dialysis unit, I'm also aware कि there are issues of stakeholders जो dialysis देते हैं. So that's why maybe you all thought I should give this talk. My suggestion to Kidney Warriors Group or Foundation is that इस topic को थोड़ा सा change कर लो. Capping dialysis cost के बदले capping dialysis profits, because there is difficulty in capping dialysis cost below a certain degree. But profits को आप cap कर सकते हो कि उतना ही reasonable profit कोई करेगा तो बहुत ज़्यादा फिर cost नहीं आएगी. But अगर हम cost price कोई cut कर देंगे, then you are cutting corners and giving inferior quality of dialysis. So इसलिए a sustainable dialysis for a person, supposing somebody is on 10 years of dialysis, so we understand कि एक गाड़ी में आने वाला बंदा बाद में रिक्शा में आता है और फिर उसको कोई छोड़ के जाता है. So slowly the family income also goes down और खर्चा इतना हो जाता है. But remember, there is a minimum cost price of running a good dialysis unit which cannot be compromised. और ये अगर patients को पता रहे तो उनको ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि ये लोग 1000 रुपया क्यों ले रहे हैं, 1200 रुपया क्यों ले रहे हैं डायलिसिस की. एंड रिमेंबर, अ पुअर क्वालिटी लो प्राइस डायलिसिस इज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि उसको फिर वो इंग्लिश में बोलते हैं ना, पेनी वाइज पाउंड फुलिश हो जाता है. क्योंकि आप देखेंगे आगे कि कॉस्ट ऑफ डायलिसिस इज नॉट जस्ट डायलिसिस सेशन बट many other things. In fact, dialysis session का cost is just half of the total expense which the patient bears. And आप लोग सब उसके बारे में जानते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको फिर से अप्राइज करता हूं कि अगर हम डायलिसिस कॉस्ट ऑफ द सेशन थोड़ा सा 10% 15% कम भी कर देंगे तो भी बहुत सारे दूसरे कॉस्ट हैं जिसको कम करना शायद मुश्किल हो जाएगा. फॉर एग्जांपल, दवाई वाला अपनी कॉस्ट कम नहीं करेगा. एंड सम ऑफ द डायलिसिस ट्यूबिंग जो गवर्नमेंट जब तक सब्सिडी नहीं हटाता है कम नहीं होंगे, एंड सो ऑन. सो दिस इज द कॉस्ट टू द पेशेंट. मैंने सेजल जो आपकी एक्टिव मेंबर है उनसे भी पूछा था कि मुझे बताइए पेशेंट्स की एक्चुअल कॉस्ट किडनी वॉरियर फाउंडेशन के पेशेंट्स की कितनी होती है. एंड शी गेव मी द फीडबैक कि मोस्ट ऑफ दिस पेशेंट्स स्पेंड 25 to 30,000 रुपीज अ मंथ, और उसको हमने ब्रेकअप किया है. डायलिसिस सेशन का अगर हम 1200 रुपया गिनते हैं तो इट्स अबाउट
15,000 to 18,000 रुपीज अ मंथ। लेकिन मेडिसिन, एरिथ्रोपोइटिन, डायलिसिस ट्यूबिंग, वो सब गिनेंगे तो 8 से 10,000 रुपये महीना वो हो जाता है। लैब टेस्ट 1500 रुपये रूटीन, लेकिन 1500 रुपये बीच बीच में स्पेशल टेस्ट होते हैं, आयरन, हेपेटाइटिस बी, HIV एटसेट्रा टेस्ट। अभी कभी कभी बीच में कोविड आ जाता है, कभी आयरन स्टडीज हो जाते हैं, कभी पैराथायरॉयड हार्मोन का टेस्ट होता है, एंड सो ऑन। सिमिलरली ट्रांसपोर्टेशन 100-150 रुपया, रिक्शा का भाड़ा का, वो सब गिन के 2,000 रुपये महीना वो हो जाता है। एंड एज शी सेंट टुडे 3 केसेस, उनमें यही है कि हॉस्पिटलाइजेशन बार बार होने से, कभी वैस्कुलर एक्सेस को, फिस्टुला को ठीक करने से, उसके कॉस्टिंग भी गिने जाएंगे तो बहुत हो जाते हैं। अभी तो हमने जिसकी जॉब चलेगी उसका कॉस्ट नहीं गिना, और जो केयर गिवर घर में से आता है उसको छोड़ने, उसकी कॉस्ट गिनेंगे तो रफली अबाउट 30,000 पर मंथ इज द कॉस्ट ऑफ पर मंथ फॉर द डायलिसिस पेशेंट, जिसमें से मुश्किल से 15,000 डायलिसिस सेशन की कॉस्ट है, बाकी 15,000 से। सो एनीवे, दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन जो हम देना चाहते थे। लगभग अबाउट 1.5 लाख पीपल आर ऑन डायलिसिस, एंड द गुड पार्ट, the good part about India now is that the number of dialysis centers is growing very rapidly. In fact, dialysis is growing around 30%, while world में it is growing just around 6% to 8%. यानी हमारे यहाँ डायलिसिस की तरक्की बहुत हो रही है। क्वालिटी एंड कॉस्ट इज लिटिल अनइवन, वो हम देखेंगे कैसे, बट फिर भी अवेलेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री इज देयर नाउ, एट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, सब जगह डायलिसिस सेंटर्स आ गए हैं। एंड इसमें नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम ने इम्प्रूव किया अवेलेबिलिटी फॉर द BPL फैमिलीज। एंट्री ऑफ डायलिसिस चेन्स ने फर्क कर दिया है, एंड गवर्नमेंट की योजनाएं, आयुष्मान भारत, PMJY, आरोग्यश्री, महात्मा ज्योतिबा फुले योजना, जो पहले राजीव गांधी बोलते थे, ये सब बहुत हेल्प करती हैं बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को। एंड जैसे हमने शुरू किया बॉम्बे में 30 इयर्स बैक, NGO बेस्ड डायलिसिस सेंटर्स, मैंने अपने हाथ से कई सारे NGOs के हेल्प से बहुत सारे डायलिसिस सेंटर्स खोले हैं, और वो NGO बेस्ड डायलिसिस सेंटर्स टुडे आर हेल्पिंग अ लॉट ऑफ पीपल इन आवर एरिया। एंड ये लाइन आपको शायद पसंद नहीं आएगी, बट यू शुड रियलाइज दैट डायलिसिस इन इंडिया इज द चीपेस्ट इन द वर्ल्ड, एंड अनफॉर्चुनेटली स्टिल इट बिकम्स एक्सपेंसिव बिकॉज मोस्ट पेशेंट्स हैव पे फ्रॉम देयर ओन पॉकेट्स, इसलिए ये एक्सपेंसिव लगती है। ये दिस इज द कॉस्ट ऑफ अ सेकेंडरी टर्शरी केयर हॉस्पिटल इन, ये PGI की स्टडी है, मेरी नहीं है। और PGI की स्टडी जो बड़े बड़े लोगों ने की है, विवेकानंद झा वगैरह, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, लेकिन जब उन्होंने कैलकुलेट की कॉस्ट ऑफ डायलिसिस, जो मैंने आपको उसके पहले बताया था, तो उनकी आई है पर सेशन 4,000 रुपया। पता नहीं कैसे वो डायलिसिस करते हैं, लेकिन 4,000 रुपया, और ये प्रेजेंट किए इंटरनेशनल जर्नल में। ये जर्नल का नाम है CKJ, क्लिनिकल किडनी जर्नल। तो उसमें पेशेंट को कई बार आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस आते हैं, यानी गवर्नमेंट पैसे डायलिसिस के तो फ्री करती है, लेकिन बाकी के कॉस्ट कितने हो जाते हैं। सो इन शॉर्ट हम ये कहना चाहते हैं कि हम जानते हैं कि कितनी विकट परिस्थिति से पेशेंट्स गुजरते हैं जब वो लॉन्ग टर्म डायलिसिस हो जाती है। सो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर खन्ना को समझ नहीं आता या दूसरे लोगों को आइडिया नहीं होती, बट आप ये देखो कि वेरिएबिलिटी ऑफ डायलिसिस कितनी है। यानी अगर क्वालिटी देखो तो, अगर मैंने एक्चुअली चाय का एक एग्जाम्पल लिया है, तो अब जैसे 3 घंटे चाय देते हैं, वो कटिंग चाय पिलाते हैं, 3 घंटे डायलिसिस करते हैं। जो फुल डायलिसिस देते हैं वो 4.5 घंटे करते हैं। तो आप कटिंग पी रहे हो या फुल चाय पी रहे हो देखो। दूसरा आप देखोगे, ये 1 रुपए वाली चाय है, 500 रुपए चाय है। सो अलग अलग किस्म की चाय मिलती है। उसी प्रकार डायलिसिस भी अपनी कंट्री में अलग अलग किस्म की मिल रही है। कुल्हड़ जो धोया भी नहीं रहता है, वैसे टाइप की डायलिसिस कुछ ले रहे होते हैं, ब्यूटीफुल पोर्सलिन कप में चाय पी रहे होते हैं। तो ये देखो कुछ लोगों के रीयूज डायलिजर कैसे होते हैं, और कुछ लोगों को डिस्पोजेबल डायलिजर यूज कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि इतनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायलिसिस होती है। ये चाय हम टपरी पे भी पी सकते हैं और लॉन्च में बैठ के आराम से पी सकते हैं। तो ये जनरल हॉस्पिटल का डायलिसिस यूनिट है, और ये पॉश कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का डायलिसिस यूनिट है। सो इन शॉर्ट, आपको ऐसे टूटे हुए कप में चाय नहीं पीनी चाहिए। ग्लास हो, कप हो, छोटा हो बड़ा हो, वो ठीक है। ताजमहल होटल में जाके चाय पीने की जरूरत नहीं, बट अच्छी डायलिसिस करना जरूरी है, चाहे कप का पोर्सलिन होना जरूरी नहीं। बट रियल लाइफ में यही प्रॉब्लम होता है। कई बार टी लॉन्ज में बैठ के गंदी चाय मिलती है, और कई बार रोड साइड वेंडर अच्छी चाय देता है। तो ये समझना पड़ेगा आपको कि डायलिसिस की क्वालिटी उसके बाहर से देखने से नहीं होती। बट मेजॉरिटी ऑफ डायलिसिस जो इंडिया में हो रही है, वो स्मॉल टी शॉप्स में हो रही है, चाय उधर ही पी जा रही है लोग, एंड रीजनेबल गुड क्वालिटी की चाय मिलती है छोटे छोटे टी शॉप में या शेट्टी की दुकान में। 5 स्टार में जाके चाय पीना जरूरी नहीं होता।
ये चेन्स ने क्या किया, डायलिसिस चेन्स आ गई है ना अभी, चाहे नेफ्रोप्लस हो जाए, एपेक्स हो जाए, इन सभी ने बिकॉज ऑफ इकोनॉमी ऑफ स्केल उन्होंने थोड़ा सा प्राइस को कम करवा दिया गुड क्वालिटी देने के लिए। सो डायलिसिस भी थोड़ी अच्छी क्वालिटी की होती है, कॉस्ट भी थोड़ा कम होता है, बट इनकी क्वालिटी कैन नॉट बी मैच्ड विथ वेरी पुअर क्वालिटी डायलिसिस। सो इसलिए ये जो चाय की चेन्स आ गई, देखो इधर चाय 10 रुपए में मिलती है अच्छी वाली, चायोज, चाय पॉइंट एटसेट्रा। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एन एग्जाम्पल कि कैसे वेरिएबिलिटी होती है। बट यू मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जो डायलिसिस यूनिट खोल रहा है उसके क्या खर्चे हैं। मैं आपको एक अभी 10 बेडेड नेफ्रोप्लस का सेंटर बता रहा हूँ। 10 बेडेड सेंटर का जब बनाने जाएगा तो उसमें मशीन, आरओ प्लांट, रिप्रोसेसिंग मशीन, मॉनिटर, डिफिब्रिलेटर, ये सब रखेंगे। इसके साथ में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, उसका पर बेड जो भी टीवी वगैरह लगता है, सब का बना के उसका 100 करोड़ रुपए में 10 बेडेड यूनिट बनता है। और थोड़ा हल्का बनाए तो 90-95 लाख यूनिट। सो ये उसकी कॉस्ट बनाने की है। अब उसको अगर चलाना है तो उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट कितनी है, कंज्यूमेबल, रेंटल कॉस्ट, उसकी मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट, बायोमेडिकल वेस्ट, स्टेशनरी, लॉन्ड्री, ये सब गिन के, इसके अलावा नेफ्रोलॉजिस्ट फीस, सपोर्ट स्टाफ, उसका महंगे वाला 1700 रुपए में पड़ता है, उसका सस्ते वाला 1400 रुपए में पड़ता है। ये हो गया नेफ्रोप्लस का। लेट्स टेक केईएम हॉस्पिटल पुणे। पुणे केईएम हॉस्पिटल म्युनिसिपैलिटी का नहीं है, एनजीओ बेस्ड है, वाडिया ग्रुप ने, वाडिया फैमिली ने बनाया हुआ है। इसकी कीमत देखते हैं 1425 रुपया। इसमें ऑफकोर्स उनके पास रेजिडेंट भी थोड़े हैं, वो कॉस्ट ऐड हो जाती है। लेट्स टेक मूलजीबाई हॉस्पिटल नडियाद। जब नडियाद की कॉस्ट हम चेक करते हैं तो उन्होंने, बिकॉज वो एनजीओ बेस्ड, उन्होंने और कम खर्चा करके 1162, ये अभी 4 साल पुराने, तो आज के तारीख में 1250 हो गई। सो ये उनकी कॉस्ट है। दीज आर ऑल, कोई भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल नहीं है, कोई भी प्रॉफिट मेकिंग हॉस्पिटल नहीं है, बट स्टिल उतनी कॉस्ट होती है। अब अगर आपको देखना है कि नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, साउथ जोन, वेस्ट जोन में सब में रेट थोड़े थोड़े अलग हैं। ये प्रीमियम वाले सब 2000 के ऊपर है और एवरेज डायलिसिस वाले 1200, 1300, 1400 रुपए। यानी इतनी जो लोअर एज में ये जो है, ये प्राइस से कम वाली डायलिसिस सेंटर आपको मुश्किल होता है। तो कैन वी रिड्यूस द प्राइस, क्योंकि आपके हर एक के मन में यह है कि मैं अगर 1200-1300 रुपये हर डायलिसिस सेशन का खर्चा करता हूं तो मुझे परवड़ता नहीं। अब कंज्यूमेबल कैसे रिड्यूस करोगे, जब चाइना हमें सस्ता देगा या हम इंडिया में बनाएंगे तब। अभी जब से ये कोविड हुआ है, कॉस्ट थोड़े महंगे हो गए। नेफ्रोलॉजिस्ट फीस ठीक है, 100 रुपए के बदले 50 रुपए कर सकते हो, नेफ्रोलॉजिस्ट कम घर ले जाएगा, बट डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल कॉस्ट, मशीन्स वगैरह ये उतनी ही रहेगी। इलेक्ट्रिसिटी अगर गवर्नमेंट हमें फ्री इलेक्ट्रिसिटी देगा तब होगा, जब किडनी वॉरियर्स फाउंडेशन गवर्नमेंट के पीछे लगेगी कि हम डायलिसिस सेंटर्स में सस्ती इलेक्ट्रिसिटी देगा, तो ये कीमत 80 रुपए निकल जाएगी, 20 रह जाएगी। पानी हमें कॉमर्शियल रेट पे देगा तो 40 रुपए पर डायलिसिस होगा, नहीं तो 5 रुपया होगा। सैलरी अगर हम कम करते हैं तो वो जो डायलिसिस टेक्नीशियन है ना, वो भी हैंड टू माउथ है, उसके घर में पैसा नहीं जाता, उसकी फैमिली नहीं चलती। तो इसको कम करोगे तो वो बहुत दुखी होकर आपकी डायलिसिस करेगा। सो इसमें भी आप कम नहीं करा सकते। प्रीमाइसिस अगर हम गंदी जगह झोपड़ी में डायलिसिस करेंगे तो आप बोलोगे ये तो बहुत गंदा सेंटर है, तो 100-150 रुपया उसका भी लगता है। सो ऑल इन ऑल 1200-1300 रुपए से कम में अगर आप डायलिसिस करने जाओगे तो रीजनेबल क्वालिटी की डायलिसिस नहीं होगी, क्रैक कप में चाय पीनी पड़ेगी। तो चाय तो कम से कम कप अच्छा होना चाहिए, रूटीन होना चाहिए, पोर्सलिन वाला नहीं चाहिए, बट सिंपल 2 रुपए वाला कप तो चाहिए। ये सारे बड़े हॉस्पिटल की कॉस्ट में नहीं बोलना चाहता। नाउ रिमेंबर, एक तो हम कॉस्ट देखते हैं डायलिसिस की, दूसरी हमें क्वालिटी देखनी है। अगर आपकी कॉस्ट थोड़ी सी कम है, क्वालिटी और कम है, तो आप भर्ती होते जाओगे, आप बार बार आपके फिस्टुला खराब होते जाएंगे, बार बार राइगर्स आते जाएंगे, आप एंटीबायोटिक का खर्चा करोगे वगैरह वगैरह। तो गुड क्वालिटी डायलिसिस क्या होती है, एक तो आपके जो सोल्यूट क्लियरेंस अच्छी होनी चाहिए, यूरिया रिडक्शन रेट वगैरह अच्छा होना चाहिए, ये सब आप जानते हैं। बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि अगर आप डायलिसिस करके एक्सेलेंट फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ में रहते हो तो आप नौकरी कर सकते हो। आपको डायलिसिस करते करते ऐसे लगेगा कि मेरी जिंदगी अच्छी जा रही है। आपका हीमोग्लोबिन अच्छा रहना चाहिए, आपका अल्ब्यूमिन या प्रोटीन ठीक रहना चाहिए, न्यूट्रिशन ऐसी होनी चाहिए कि आप लाइफ को एंजॉय कर सके, बार बार ब्रेथलेस होकर रात को उठ के नहीं बैठना चाहिए। ये सारे आपके एनीमिया, फॉस्फोरस, ये आंकड़े जो हैं वो सही होने चाहिए। दूसरी चीज, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख के आप डायलिसिस सेंटर चुना करो, कि कन्वर्जन ऑफ पेशेंट जो नॉर्मल है उनको हेपेटाइटिस बी और सी में अगर कन्वर्ट हो जाते हैं तो 30,000 रुपए महीने, 30,000 का खर्चा करके आप हेपेटाइटिस सी को निकालोगे, लीवर को खराब करोगे। आपका फिस्टुला जो बरसों चलना चाहिए वो अगर
1 साल में बिगड़ जाता है और आपका सेंटर की वजह से होता है, अगर बाय चांस, हर बार उसकी वजह से नहीं होता, बट बाय चांस उसकी वजह से हुआ, तो आपको लगेगा कि मेरा 20,000 रुपये अननेसेसरी एक्स्ट्रा खर्चा हो गया या 30,000 एक्स्ट्रा खर्च हो गया। बार बार आपकी फ्लूइड अगर निकाला नहीं जाए और आप ब्रेथलेस होकर एडमिट होते हैं तो हर एडमिशन का 30, 40, 50,000 रुपये खर्चा होता है। आपने पुअर क्वालिटी डायलिसिस ली तो आप मालनरिश्ड हो गए, आपकी हार्ट की पंपिंग खराब हो गई, आप व्हीलचेयर में आने लगे, उस क्वालिटी ऑफ डायलिसिस का क्या फायदा। सो बेसिकली यू मस्ट हैव गुड क्वालिटी। नाउ लेट्स कम टू क्या करना चाहिए सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म डायलिसिस वाले। आई एम टॉकिंग ऑफ पीपल जो 10 साल से डायलिसिस ले रहे हैं। तो सबसे पहले याद रखना है कि इतने सारे साल की डायलिसिस करने के बदले अगर हो सके मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ट्रांसप्लांट किया जाए, ताकि आपको लॉन्ग टर्म डायलिसिस की जरूरत ना पड़े। लेकिन मैं जानता हूँ हर फैमिली के लिए ट्रांसप्लांट पॉसिबल है। सेकेंडली, एंड आई एम श्योर किडनी वॉरियर फाउंडेशन बार बार सबको समझाते भी हैं कि हर फैमिली के पास मेडिक्लेम होना चाहिए, क्योंकि हीमोडायलिसिस मेडिक्लेम से कवर्ड है और अभी धीरे धीरे सीएपीडी भी मेडिक्लेम से कवर्ड हो। थर्डली, मैं जानता हूं सबकी अपेक्षा होती है कि बेस्ट पॉसिबल सेंटर में डायलिसिस करो, लेकिन पोर्सिलिन कप की जरूरत नहीं है। सिंपल कप अगर अच्छा हो तो उसमें डायलिसिस करने में हर्जा नहीं है। सो जितनी चादर हो उतना पैर फैलाओ, बाद में बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल टू एवरी टाइम। ये जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं वो बहुत सारी प्रॉफिट कम करने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन अच्छी क्वालिटी ऑफ एनजीओ सेंटर्स होते हैं। सो आपको शुरू से चुनना है कि सस्टेनेबल कॉस्ट का गुड यूनिट, वो फॉर्मूला आपको अपनाना है। मोस्ट पीपल क्या करते हैं, ये मेरे घर के पास में है, इधर मुझे बाहर से बहुत अच्छा लग रहा है, ये मेरी साफ सफाई अच्छी है, ये टेक्नीशियन मुझे पसंद है, ये मेरा बहुत ध्यान रखता है, ये माउशी जब भी बेल मारो तो आ जाती है। नाउ दीज आर नॉट द वेज इन विच यू डिसाइड अ डायलिसिस। एंड सेकेंडली, अगर बहुत साल डायलिसिस हो रही है और आपके बगल में कोई अच्छा चैरिटेबल सेंटर आ रहा है, यू शुड बी विलिंग टू शिफ्ट फ्रॉम वन गुड प्राइवेट सेंटर टू वन गुड चैरिटेबल सेंटर। एंड मेनी ऑफ माय पेशेंट्स को मैंने खुद भेजा अपने प्राइवेट सेंटर से चैरिटेबल सेंटर्स में, एंड दे हैव फाउंड नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेंटर्स। सो ये ध्यान रखना कि दिस इज अनदर वे ऑफ मैनेजिंग लॉन्ग टर्म। नाउ एनी गुड डायलिसिस लेस देन 1200 रुपए में अगर आपको मिल रही है तो somebody is paying for it. Some good Samaritan and philanthropist आपको भर रहा है, वो कॉस्ट कम नहीं हो रहा। तो ऐसे फिलेंथ्रोपिस्ट हैं, खास करके मुंबई में बहुत सारे ऐसे डायलिसिस सेंटर्स हैं, बट दे आर नॉट इनफ। इसके लिए कई लोग बेचारे रह जाते हैं कि जिनको कोई एनजीओ सपोर्ट नहीं मिलता, उनको बहुत भारी पड़ता है आगे डायलिसिस। एंड देन लैब कॉस्ट आपकी जो 1500 रुपए है वो कम हो सकती है, दैट कैन बी सब्सिडाइज टू सम एक्सटेंट। मेडिसिन कॉस्ट को सब्सिडाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग जेनेरिक मेडिसिन, या एनजीओ कुछ हैं जो सपोर्ट करते हैं, जैसे जीवन ज्योत है, बहुत सारे और एनजीओ हैं जो डायलिसिस ट्यूबिंग सप्लाई करते हैं वगैरह। हॉस्पिटलाइजेशन एंड वैस्कुलर एक्सेस जो है ना, वो कॉम्प्लिकेशन अगर होते हैं, तो जैसे मेरे जैसा आदमी बहुत सारे ट्रस्ट हॉस्पिटल में जाता है जिधर सेम नेफ्रोलॉजिस्ट है, तो वो मैनेज कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 40-50% लेस है। एंड ये जो सपोर्ट ग्रुप्स है ना, किडनी वॉरियर्स फाउंडेशन, मुंबई किडनी फाउंडेशन, ये आपको ऐसी इंफॉर्मेशन देगा, तो बी ऑन गार्ड के आप ये सारे सपोर्ट ग्रुप्स में अवेलेबल होने चाहिए। सो फ्रेंड्स, मैं आपको शायद निराश कर रहा हूँ, मैं कैपिंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये समझा रहा हूँ कि एक मिनिमम प्राइस डायलिसिस का पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन उसको कैसे सरकमवेंट करना, लंबी जो लड़ाई है हमारी किडनी फेलियर से, उसको कैसे जूझना, उसको कैसे झेलना, उसके कुछ आइडियाज मैंने दिए हैं। शायद माय नेक्स्ट स्पीकर विल टॉक अबाउट सम मोर आइडियाज, but I would be happy if there are some questions which can I answer. Thank you so much.